नमस्कार दोस्तों, हर संडे की तरह आज भी आपके साथ जुड़ चुका हूं। मेरी कोशिश यही रहती है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को कुछ ना कुछ देते रहूं और इस देने के प्रयास में कई बार मेरे ऐसे वीडियो बनते हैं जो काफ़ी शॉर्ट होते हैं। लोगों को शॉर्ट वीडियो ही पसंद है, आज भी शॉर्ट ही वीडियो बनाऊंगा। पिछले संडे जो वीडियो मैंने बनाया था वो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के बारे में बनाया था। कई लोगों के फीडबैक आए हैं, वो ऐसे है कि सर आप सिर्फ 4 या 5 रेशो के बारे में बात करोगे तो वो पूरा तो नहीं होगा। तो कितने रेशोज़ है? लगभग 30-40 रेशो है जिसके ऊपर बैंक का पूरा परफॉर्मेंस देखा जाता है या परखा जाता है। I simply wanted to focus on determining the productivity and efficiency. Therefore, I only concentrated on those 3 or 4 ratios. Anyway, I am extremely grateful to all of you who are responding to my videos. आपको अच्छे लग रहे हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ देने की कोशिश करता हूँ। आज मैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर के बारे में एक जो थोड़ा रुचिदायक सब्जेक्ट नहीं, उस सब्जेक्ट के बारे में बात करूँगा। और आपको जानना होगा कि ये सब्जेक्ट के बारे में आपको मालूमात होना ज़रूरी है। यू मस्ट नो दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एज अ बैंकर बिकॉज देर आर positive opportunities and negative opportunities. Now when I talk of positive opportunity or a negative opportunity, I must tell you that our country has 1500 odd cooperative banks and almost 600 to 700 cooperative banks are in C or D grade. आपने देखा होगा कि एक्सपर्ट कमेटी ने ये कहा है कि ये जो बैंक्स इम्प्रूव होने वाली नहीं हैं, दे शुड बी नज्ड फॉर मर्जर। उनको मर्जर के लिए प्रवृत्त किया जाए, इस प्रकार का थिंकिंग या इस प्रकार की धारणा रिजर्व बैंक में है। लेकिन ये जब धारणा की हम लोग बात करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये मर्जर किस तरह से होता है। स्पेशली BR एक्ट जो सितंबर 20 में पास हुआ था, व्हाट इज द स्टोरी आफ्टर दैट? यस, BR एक्ट हैज़ enabled the conversion or migration of a Punjab and Maharashtra cooperative bank into a small finance bank. That was a huge exercise where the government of India was also involved. But now, after the passage of Banking Regulation Act and its amendment, things have changed. There was original circular from Reserve Bank of India in respect of merger in the year 2005, and Reserve Bank of India all along has been saying the word or using the word amalgamation. They are not using the word merger anywhere. Now, if you look at the BR Act amendment that was made in September 2020, you will find that nowhere the merger word has been used. They are using the word amalgamation. Why this is so? This is principally, I believe there are 2 different meanings, action is same. Merger is a lot more, what do we say, colloquial or a local word. Amalgamation is something where you merge them. Meaning is a little bit different either way. But the law and the act and the Reserve Bank of India guidelines talks of amalgamation. And when it is a voluntary amalgamation and a forcible amalgamation, the 2 different concepts play it differently. हम लोग ये सोचते हैं कि मर्जर हो जाता है मतलब वॉलंटरी होता है। कानून उसको अमालगमेशन ही समझता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। सो मेरा ये मानना है कि सितंबर 2020 में BR एक्ट पास होने के बाद में 23 मार्च 2021 को रिजर्व बैंक ने एक मास्टर डायरेक्शन निकाली। मास्टर डायरेक्शन थी अमालगमेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स डायरेक्शंस 2020। दिस पर्टिकुलर सर्कुलर इज वर्चुअली import of the 2005 guidelines. There is not much has changed, but because of BR Act there are several things which have been, the approach has changed to a great extent. And during an intervening period, what has happened is this: the DICC Act has also been amended by the Parliament. With the amendment of DICC Act, let me tell you, the depositors of the urban cooperative banks which are failing are getting an assurance. Almost 98 to 99% of deposits are being repaid via DICC. Once the DICC pays to the depositors of a failed bank, the situation of helping the bank either to amalgamate or to survive or to keep the license open becomes very difficult.
Once the depositors have got their money on the basis of that 5 lakh insurance limit, which we all know, the things become difficult because no bank takes interest in such a bank where the liability of DICCC is required to be paid off. Of course, I will talk about this a little later in my video. I would like to focus on the 2021 Master Directions on Amalgamation for the simple reason what has changed and how it has changed. This is useful not only for the banks which are trying to acquire some smaller banks in the country, and for the smaller banks which they want, where they know that they cannot survive, they should identify somebody who will take them up. Now the process of taking up is little bit different. There can be a separate video on that. I am going to restrict my discussion today only on the basis of this circular master direction that has been issued, and couple of interesting things are there in the circular. What is the interesting thing? The master direction that has been issued is post amendment of BR Act, that is point number 1. Point number 2, all earlier guidelines in respect of merger, in respect of amalgamation, I should also not use the word merger, because amalgamation is the legal word that the Reserve Bank of India is referring to every now and then. This particular circular has been issued to make effective use of section 44A, and they have introduced couple of definitions. वो ये कहते हैं कि amalgamation का जो definitions होगा वो आप पढ़ोगे तो आसानी से आपको ध्यान में आ जाएगा. Amalgamated bank means the UCB which proposes to transfer its business to another UCB under the scheme of amalgamation. अगर आपका बैंक छोटा है, धंधा नहीं कर सकता है, परेशानियां देख रहा है, परेशानियां फेस कर रहा है, तो अमालगमेटेड बैंक आप होगे. अगर दूसरा कोई बड़ा बैंक आपको एक्वायर कर रहा है तो उस बैंक को अमालगमेटिंग बैंक कहा जाएगा. सो द 2 वर्ड्स अमालगमेटेड एंड अमालगमेटिंग. अमालगमेटेड बैंक का मतलब ये है कि बैंक का अस्तित्व खत्म होने वाला है. अमालगमेटिंग बैंक इज़ द बैंक विच इज़ एक्वायरिंग दिस स्मॉलर बैंक. अमालगमेशन का मतलब उन्होंने ये कहा है कि अमालगमेशन का मतलब है कि व्हेन 2 or more banks try to amalgamate with each other and come out on a very strong way. अभी ये स्कोप के बारे में उन्होंने कहा है कि ये अमालगमेशन का जो प्रोसेस होगा वो कैसे होगा, कि अमालगमेशन का जो प्रपोजल होगा रिजर्व बैंक एक्सेप्ट करेगा. वो किस तरह से एक्सेप्ट करेगा, तो उनका ये कहना है कि जो बैंक अच्छे से काम नहीं कर रही है या जो बैंक अमालगमेट करवाना चाहती है अपने आप को, तो ये अमालगमेटेड बैंक है, इनकी नेटवर्थ पॉजिटिव है. अब इनकी नेटवर्थ पॉजिटिव है तो अमालगमेटिंग बैंक जो होगा, जो बैंक लेने वाला होगा, उसको एक ऑप्शन देना पड़ेगा कि भाई हम जितने भी इस बैंक के डिपॉजिटर्स हैं उनकी हम रक्षा करेंगे, विल प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट. दूसरा ऑप्शन, जब ये अमालगमेटेड बैंक की नेटवर्थ निगेटिव है, फिर भी अमालगमेटिंग बैंक ये कह रही है कि हम ये पूरे डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे. इंटरेस्ट से ये जो अमालगमेट होने वाली बैंक है उनके डिपॉजिटर्स की हम रक्षा करेंगे, उनको हम पैसा देंगे. तीसरा ऑप्शन, तीसरा स्कोप रिजर्व बैंक ये कहती है कि इनका नेटवर्थ नेगेटिव हो चुका है और जो अमालगमेटेड बैंक होगा उसका नेटवर्थ नेगेटिव है, लेकिन जो बैंक अमालगमेशन करवा रहा है, अमालगमेटिंग बैंक जो है, वो बैंक किसी की आर्थिक मदद से, किसी की फाइनेंशियल सपोर्ट से ये अमालगमेशन करवाना चाहता है. ये तीसरा ऑप्शन है. ये तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कि तुम्हारा जो स्टेट होगा वो इसको फंडिंग कर सकता है. स्टेट अगर फंडिंग करने को तैयार है तो हम लोग वो भी ऑप्शन आपको देंगे. स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑलरेडी आ गई है और प्रोसेस में जो डिफरेंस आया है, प्रोसेस करने के लिए डिफरेंस ऐसा है कि आपका जो बोर्ड होगा, ये बोर्ड को 2/3 मेजॉरिटी से ये अमालगमेशन का प्रस्ताव दोनों बैंकों को पारित करना है. 2/3 मेजॉरिटी इज़ द की थिंग दैट दे आर टॉकिंग. एंड जितने भी बोर्ड मेंबर्स होंगे वो इसमें ज्वाइन होना, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ऐसा उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है, वो आपका करना चाहिए, वो आपको डिसीजन बोर्ड में लेना चाहिए. ये डिसीजन आप लेते हैं, उसके बाद में ड्यू डिलिजेंस की प्रोसेस है, वो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो काफ़ी बड़ा और सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट वीडियो हो जाएगा.
लेकिन ये मास्टर डायरेक्शन में एक चीज़ ऐसी आई है कि अगर आपकी नेटवर्थ पॉजिटिव है तो जो बैंक आपको ले रही है उनसे आप कंसीडरेशन ले सकते हैं। कंसीडरेशन किस तरह का होगा, जैसे कि आपके बैंक का नेटवर्थ पॉजिटिव है, आपके पास शेयर कैपिटल है, आपको जो ऑनस्लॉट हो रहा है चेंजेस का, रेगुलेटरी चेंजेस का, या फिर और बिजनेस में आपको तकलीफ़ें हैं और वो आप आपका बैंक बंद करवाना चाहते हो, तो आपको ये जो अमालगमेटिंग बैंक है इस बैंक की तरफ से कंसीडरेशन लेने की सहूलियत है। कंसीडरेशन क्या होगा, ब्लैक में कुछ नहीं मिलेगा बॉस, लेकिन वाइट में कंसीडरेशन आएगा, वो आपके शेयर कैपिटल और रिजर्व का कंसीडरेशन गुडविल करके ये अमालगमेटिंग बैंक आपको दे सकती है अगर आपका बैंक अपने आप को मर्ज करवाना चाहते हैं। इसका हिसाब कैसे होगा, इसका हिसाब अलग अलग तरह से हो सकते हैं, उसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिसको हम स्वैप रेशो भी कहते हैं। अगर आपका 1 रुपये का शेयर है, उसको अमालगमेटिंग बैंक 1 रुपये का शेयर की वैल्यू दे रही है तो स्वैप रेशो हो गया 1:1, लेकिन आपके 1 रुपये को अमालगमेटिंग बैंक 90 पैसा दे रही है, देन द स्वैप रेशो इज़ डिफरेंट। रिजर्व बैंक चाहती है कि इस तरह का कंसिडरेशन अगर देना है तो इसका इवैल्यूएशन, इसका एस्टिमेशन, इसका टोटल फेयरनेस और प्रॉपर कंपटीशन होना काफ़ी ज़रूरी इसमें उन्होंने बताया है। और ये आप स्वैप रेशो वगैरह जब निकालोगे तो रिजर्व बैंक के किसी भी नियमों का उल्लंघन होना ज़रूरी नहीं है। ये अमालगमेशन करते वक्त रिजर्व बैंक ने एक चीज़ बड़ी सरलता से कही है कि भाई दोनों बैंक मर्ज होने के बाद में आपका नेट एनपीए या फिर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी या फिर बाकी के जो पैरामीटर्स होते हैं वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आपका मर्ज होने के बाद में, अमालगमेशन होने के बाद में, अमालगमेटिंग बैंक का जो बेसिक CRAR होगा वो 9% से नीचे अगर जाता होगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परमिशन नहीं देगी। सो द बेस लेवल CRAR इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन, वंस यू मेंटेन दैट यू मे गेट परमिशन। इसका मतलब मुझे ये लगता है कि अगर थोड़ा NPA में ऊपर नीचे होता है और अगर ये सेक्टर के इंटरेस्ट में है तो रिजर्व बैंक शायद आपको परमिशन इसकी दे सकती है। किसी भी तरह का आपको रेगुलेटरी वायलेशन इस अमालगमेशन के प्रोसेस में करना नहीं है। पुराना जो मर्जर का प्रैक्टिस है उसमें क्या होता था कि शेयर होल्डर को कुछ मिलता नहीं था, 10 साल के बाद पैसे मिलेंगे, ऐसी स्टोरी थी। जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रिकवर होता है या फिर एसेट का जो प्रोविजन होने के बाद रिकवर होता है तो ही शेयर होल्डर को पैसा मिलता था, नहीं तो ये अमालगमेटिंग बैंक ये पूरा शेयर होल्डर्स का पैसा खा जाती थी। शेयर होल्डर्स वे द फर्स्ट लॉस टेकर्स बिकॉज द अमालगमेटिंग बैंक हैज एक्वायर्ड लॉट ऑफ लॉस। दैट वाज द आइडिया। The idea is now scrapped. It has now come on the basis of actual valuations of your share capital. दूसरा, ये जो मर्ज होने वाली बैंक होती है, अमालगमेट होने वाली बैंक होती है, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोई पूछना नहीं था। अभी ऐसा नहीं है। रिजर्व बैंक ये कहती है कि दोनों बोर्ड्स का भी अमालगमेशन हो सकता है, लेकिन ये जब अमालगमेशन अभी होगा तो सेक्शन 10A, 10B, 10C में जो उनके प्रोफेशनल डायरेक्टर्स के क्वालिफिकेशन दिए गए हैं उसको सामने रखते हुए उसके मद्देनज़र ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी अमालगमेशन हो सकता है। जिसका मतलब ये है कि अमालगमेटिंग बैंक ये डिसाइड कर सकती है कि इस बोर्ड में से कुछ अच्छे लोग सॉरी अपने बैंक में वो मर्ज कर सकते हैं। उसके पहले क्या होता था, और एक चीज़, रिजर्व बैंक इन मर्जर के बारे में ध्यान नहीं देती थी। जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट है, वैसे हर एक स्टेट में अपना अपना एक्ट है। तो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव में एक सेक्शन 110A करके था, है अभी भी, आज भी। तो ये जो एक 10-15 साल पहले जब मर्जर की वेव थी, देयर वर लॉट ऑफ मर्जर्स व्हिच वर टेकिंग प्लेस, व्हाट वाज द प्रोसेस दैट वाज डन। ये दोनों बैंकें क्या करती थी कि एक मर्जर का स्कीम बनाती थी, प्रोग्राम बनाती थी, टर्म्स फाइनल करते थे और वो टर्म्स जाके वो रजिस्ट्रार को मिलते थे। रजिस्ट्रार यूज्ड टू इशू द ऑर्डर ऑफ अमालगमेशन, ऑर्डर ऑफ मर्जर वाज इशूड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। वो बंद हो गया अभी। इसके बाद क्या होगा कि रिजर्व बैंक अंडर सेक्शन 56 एंड अंडर सेक्शन 44A ड्यू टू द अमेंडमेंट्स विच वर मेड, मर्जर ऑर्डर विल बी इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ने क्या कहा है कि मर्जर ऑर्डर अगर आपको इशू करना है तो आपको स्कीम ऑफ मर्जर बनाना है पहले, जो पहले भी बनती थी, आज भी बनानी है। तो स्कीम ऑफ मर्जर जो होगा
वो पहले आपको दोनों बैंकों के एनुअल जनरल बॉडी में मंजूर कर लेना चाहिए। और उनका एक टिपिकल सेंटेंस उसमें आया है कि वो ये कहते हैं कि द ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अमलगमेशन शैल बी अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ ईच अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ मेजॉरिटी रिप्रेजेंटिंग 2/3 ऑफ द शेयर होल्डर्स बोथ इन नंबर एंड इन वैल्यू। तो सिर्फ मेंबर्स नंबर में नहीं तो वैल्यू में भी मेंबर उसका 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और वो मीटिंग में हाजिर होना चाहिए। So this is a new thing that is to be seen, and the merger scheme has to be approved by the board of directors of both the bank. उसके बाद में इस सर्कुलर में आपको रिजर्व बैंक को किस तरह से अप्लाई करना है, क्या एप्लीकेशन देना है, ड्यू डिलिजेंस किस तरह से करना है और ड्यू डिलिजेंस लेके वैल्यूएशन किस तरह से करना है, ये सब चीज़ें उन्होंने इसमें बताई है। तो ये एक मेजर सर्कुलर है जो हम सबके दिमाग से निकल गया है, लेकिन जब एक्सपर्ट कमेटी कहती है कि वी आर ट्राइंग टू नच दी वीकर बैंक्स टू गेट देमसेल्व्स मर्ज्ड इनटू अ स्ट्रॉन्गर बैंक्स, ये अगर आने वाला है तो आप सबको इस चीज़ के बारे में मालूमात होना ज़रूरी है। सर्कुलर है मास्टर डायरेक्शन DOR-MAM डेटेड March 23, 2021। नॉर्मल बैंकिंग में हम लोग इस तरह के सर्कुलर पढ़ते नहीं हैं, ये पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि अगर दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटी, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज, आपकी बैंक अच्छी है आपको अमालगमेट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़, आपकी बैंक तकलीफ़ में है तो आपको ढूंढना है कि मैं बंद होने से पहले अगर कोई मुझे अमालगमेट करवाता है तो मेरी बैंक तो टिक जाएगी, मेरे कस्टमर्स को भी कोई नुकसान नहीं होगा, DICA का पैसा डिपॉजिट को देने की ज़रूरत नहीं है। अमालगमेट होने के बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी सॉफ्ट रोल, दे आर सिंपली गोइंग टू इंश्योर अ वायबिलिटी एंड देन कंप्लायंस टू सर्टन नॉर्म्स। ये सब चीज़ें आने के बाद में आपको ये सोचना है कि ये मर्जर सीमलेस और इंटीग्रिटी सीमलेस हो। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि आप ये सर्कुलर को डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। स्वैप रेशो किस तरह से निकलना वो इसमें दिया नहीं है क्योंकि केस टू केस वो सिचुएशन बदलने वाली है। स्मॉलर बैंक बट इफ इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग दे कैन सीक अ कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ गुडविल फ्रॉम द अमालगमेटिंग बैंक। वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हैज़ बीन गिवन इन सर्टन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हम जहन में रख के इसको समझें। किसी को पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी होगी, सभी को पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी होगी जो कि क्योंकि जो बैंक तकलीफ में है, द बैंक्स विच आर फेसिंग डिफिकल्टीज, दे ऑल्सो कैन ट्राई टू अमालगमेट देमसेल्व्स विद इन निप ऑफ टाइम फॉर द सिंपल रीजन इफ़ यू डिले दैट आपकी प्रोसेस हाथ से निकल जाएगी, आपके शेयर होल्डर को तकलीफ होगी। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको बताइएगा। थैंक यू फॉर लाइकिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।